اسلام آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن عرب کی سرزمین پر یہ دین ابراہیمی کے نام سے آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا جب دنیا میں کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت پھیل چکی تھی، لوگوں میں کثرت سے اپنی عبادت کروانے کا رواج ہو چکا تھا۔ جیسے کہ نمرود کا زمانہ تھا، وہ طاقت و قوت کے بلبوتے اپنی عبادت کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے عراق بابل کے شہر میں، عراق کا ایک شہر بابل میں، اور وہاں سے آپ نے نور ہدایت کو منور کیا، ایک خدائے واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ کی آبادی دشمن ہوئی، خاندان دشمن ہوا، بادشاہ دشمن ہوا، بدلے میں آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کر مصر چلے گئے۔ مصر کی سرزمین کو آپ نے اپنا جائے قیام بنایا، وہیں پر رہنے لگے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، اولاد نہیں تھی برسوں تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت میں بہت سارے لوگ تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کا ایک بادشاہ جو آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور ہدایت سے روشن کیا، پھر وہ آپ کی عزت و تکریم کیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ شروع سے میں تاریخ میں چل رہا ہوں، سب کو ذہن حاضر رکھنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ دوسرے نکاح میں آئیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور ہوا یہ کہ دو بیویاں ایک گھر میں رہیں، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب معاملات بدلنے لگ گئے تو حضرت ہاجرہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اس ماں اور بیٹے کو الگ رکھا جائے اور پہلی بیوی کو الگ رکھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو مصر میں ہی چھوڑ دیے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام۔ عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں، عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کا گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔ خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں، بغیر چھت کا مکان۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواریں اونچی کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا، جب آپ کو اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے، شاد و آباد کر دے، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جو بے آباد علاقہ تھا، اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بے آباد علاقہ، کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا، چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا،
तारीख में आपको पता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से ज़मज़म का कुआं निकला और वो पानी का सोता चश्मा ऐसा था कि कंटिन्यू जारी, बल्कि आज तक जारी है। तो एक कबीला वहाँ से सफ़र कर रहा था जिसको कबीले बनु जुरहम कहा जाता है। वो वहाँ की खूबसूरती को देखकर, वो वहाँ के पानी की फरावानी को देखकर वहीं पड़ाव डाल लिए और वहीं रह गए, बस गए। ये पहला कबीला है जो मक्का में आबाद हुआ, कबीले बनु जुरहम। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी कबीले की एक लड़की से शादी भी फरमाई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में 12 बेटे पैदा हुए। आपकी औलाद अब बढ़ती गई। अरब सरजमीन में सबसे पहली ये नस्ल है, अरब को आबाद करने वाली पहली नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम की है। कबीले बनु जुरहम के साथ आप आबाद हुए मक्का मुकर्रमा में। अब इनकी नस्ल इतनी बढ़ती गई कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे नाबत। उनके हाथ में खाने काबा की तौलियत आई, खाने काबा की हिफाजत और उसकी जिम्मेदारियों का ये सारा इंतज़ाम आपका वक़ा। चंद दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि कबीले बनु जुरहम के लोगों ने, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुराल थे, खाने काबा की तौलियत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ने कोई भी उनके साथ झगड़ा नहीं किया, किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि ननिहाल के थे। तो कई सालों तक कबीले बनु जुरहम का खाने काबा पर कब्जा बाकी रहा, लेकिन उन्होंने बदउनवानियाँ शुरू कर दी। खाने काबा के पास लोग जो दूर दूर से आते थे दुनिया में, हाजी उस वक्त भी हर साल हज हुआ करता था, उनके साथ बुरा सलूक करना, उनसे चढ़ावे लेना, उनसे ज़्यादा मांग करना, ये सब चीज़ें होने लगी। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ने दोबारा खाने काबा की तौलियत अपने ज़िम्मे ले ली। तौलियत कहते हैं जिम्मेदारी, जिसे मुतवल्ली कहा जाता है। जैसे मस्जिद का मुतवल्ली होता है, तौलियत उसी को कहते हैं। खाने काबा की खिदमत की जिम्मेदारियाँ। अब ये ज़माना चलता रहा। मैं आपको पहले ये ख़ानदानी मामलात बता रहा हूँ, उसके बाद फिर यहाँ के सियासी हालात भी बताऊँ और फिर मजहबी हालात भी आपको बताऊँ, ताकि इस्लाम की तारीख़ को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड भी समझना बहुत ज़रूरी है। पस मंज़र क्या था ये मालूम होना ज़रूरी है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अदनान एक शख्स पैदा हुए जो आले इस्माइल में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। अक्सर सहाबा कराम का और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हज़रत अदनान तक पहुँचता है। वो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद भी हैं। अदनान ने मक्का मुकर्रमा की जिम्मेदारियां संभाली और उसके बाद अब आबादी इतनी बढ़ गई कि इन लोगों को तिजारत के लिए और अपने माईशत के लिए, अपने माश के लिए दूर दूर जाना पड़ा, मक्का छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। आबादी बढ़ती चली गई मक्का मुकर्रमा की। और उसके बाद ज़माने के सुबह शाम गर्दिशे लैलो नहार जिसको कहते हैं, आते गए ऐसे कि आले इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का कब्ज़ा या उनकी खिदमत का मामला खाने काबा पर ढीला पड़ता चला गया। फिर कोई दूसरा कबीला आया, बनु खुज़ाआ, उन्होंने खाने काबा की तौलियत अपने हिस्से में ले ली। अब जो असल तारीख़ शुरू होती है वो मैं बताना आ रहा हूँ। तो बरसों बरस इसी तरह से गुजरते गए और फिर एक शख्स पैदा हुए जिनका नाम फहर था। यह इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में फहर नाम है। फहर का एक लक़ब था कुरैश, और यहीं से कुरैश ख़ानदान की इब्तिदा होती है। कुरैश उनका लक़ब था और असल नाम था फहर बिन गालिब। तो हज़रत फहर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा होते हैं, ये पैदा हुए और इनकी औलाद हुई। और उसके बाद अब कुरैश ख़ानदान की इब्तिदा हुई, लेकिन जगह जगह ये लोग मुंतशिर हो गए। कुछ मक्का में रहे, कुछ बाहर रहे, लेकिन खाने काबा की तौलियत की और वहाँ का सारा कब्ज़ा जो है बनु खुज़ाआ कबीले के हाथ में था।
फिर ज़माना बदलता हुआ यहाँ तक पहुँचा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में यानी कुरैश ख़ानदान में एक शख्स पैदा हुए जिनका नाम कुसै था। ये तारीख के बहुत अहम आदमी है, बहुत अहम तरीन शख्सियत है कुसै। सारी सियासत अरब की वहीं जाकर ख़त्म होती है। कुसै एक किलाब के बेटे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि बाप का इंतकाल जल्दी हो गया। कुसै जो है बनु उज़रा कबीले में ही परवरिश पाए अपने ननियाल में। जवान हुए तो आपको बताया गया कि तुम्हारा ख़ानदान तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है और खाने काबा के वो ज़िम्मेदार रहे हैं, मुतवल्ली रहे हैं। तो वो अपने ननियाल को छोड़ करके जब मक्का आए तो कुसै ये जवान थे, बड़े जवान थे। आते साथ इनके अंदर वो हुनर था, पेशानी में वो चमक थी कि जो देखता देखता रह जाता। जाहिर सी बात है वो चमक किसी और की नहीं थी, वो नूरे मुस्तफ़ा की थी। कुसै ने आते साथ ही लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया। लोग जौक दर जौक कुसै के गर्विदा हो गए। फिर कुसै ने सारे कुरैश को जो इधर उधर मुंतशिर थे सबको मक्का में जमा कर दिया और बनु खुज़ाआ कबीले के हाथ में जो खाने काबा की तौलियत थी उसको हासिल कर लिया। अब दोबारा हासिल करने के बाद अब तक मक्का मुकर्रमा में या खाने काबा की खिदमत और हरम में जो मामलात चलते थे वो यूं ही चलते थे। जो जिम्मेदार है उसने जो देख लिया वो कर लिया, लेकिन कुसै ने बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट बनाए, शोबे बनाए, हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट जिसका खतरा होता है पूरा उन्होंने बनाया। उन्होंने जिम्मेदारियां बांटी, सिकाया, रिफादा, सुदाना, ये सब नाम रखे गए हैं। यानी उन्होंने शोबे ऐसे बांट दिए, डिपार्टमेंट तब्दील कर दिए गए कि यानी कई कबीलों को जमा किया मक्का में और कहा जब कभी कहीं जाने की जिम्मेदारी होगी, झंडा उठाने की जिम्मेदारी, वो एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती थी, वो एक कबीले को सौंप दिया। और हर साल जो हाजी आते हैं मीना में उनको पानी पिलाना और खाना खिलाना, इसको सिकाया कहा जाता था, वो एक कबीले की जिम्मेदारी दे दी गई, सिकाया। ये डिपार्टमेंट पूरी मिनिस्ट्री हो गई। और उसके बाद रिफादा, ये एक जिम्मेदारी है, जो हाजी आया करते उनको पैसों की ज़रूरत होती, कहीं दूर दराज से सफ़र से आए होते उनकी माली मदद की ज़रूरत होती, वो एक ख़ानदान के हाथ में दे दिया गया। ये रिफादा एक मिनिस्ट्री का नाम है, वो उस मिनिस्ट्री के ज़िम्मेदार एक कबीले को बनाया। फिर उसके बाद सुदाना, खाने काबा की हिफाजत, इसके खिलाफ को तब्दील करना, इसकी चाबी की जिम्मेदारी, इसको खोलना बंद करना, इसकी सफाई करना, वो भी एक कबीले के जिम्मे में दे दिया। वो बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री बनाई गई, एक वजारत थी। और उसके अलावा तकरीबन उन्होंने 26 मिनिस्ट्रियाँ बनाई थी, शोबे बनाए थे। कौन? हज़रत कुसै। ये दुनिया में सबसे पहले इस तरह शोबे जात को तकसीम करके, जैसे एक जमहूरी निज़ाम होता है, एक डेमोक्रेसी निज़ाम होता है, इस तरह से आपने बनाया। और हज़रत कुसै की ये महारत थी कि पूरे अरब में आपका, बल्कि हर जगह आपका चर्चा होने लगा। और हज़रत कुसै ने इस चीज़ को इतने ऊंचे लेवल तक ले जाकर वहाँ मक्का मुकर्रमा को पूरी दुनिया में मुतारफ़ किया कि लोग यहाँ की खिदमतें देखने के लिए आया करते थे। हर कबीले को अलग जिम्मेदारियाँ थी, ये तारीख़ है। उसके बाद कुसै जल्दी ही इंतकाल कर गए, हालांकि इनको ज़्यादा वक्त नहीं मिला, इनका ज़्यादा वक्त नहीं था। इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद इनके घर जो बेटे पैदा हुए हैं वो 2 बेटे थे, एक अब्दुद्दार और एक अब्द मुनाफ। कुसै ने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी जानशीनी अब्द मुनाफ को दे दिया। अब्द मुनाफ ये बहुत ही पाकीज़ा अखलाक के इंसान थे और लोगों में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ थे, मुकर्रम थे। अब्द मुनाफ के ज़िम्मे में जो काम आए थे वो जिस तरह उनके बाप कुसै ने बांटे थे। उसके बाद अब्द मुनाफ के बेटे पैदा हुए जो अरब कबीलों में नहीं, कुरैश ख़ानदान में सबसे अफजल इंसान समझे जाते थे, वो हज़रत हाशिम है। हाशिम, इनका लक़ब हाशिम इसलिए था कि इतने फयाज थे, इतने सखी थे कि अपना माल का अक्सर हिस्सा पूरा हाजियों को खिलाने में तकसीम करते थे। एक बार अरब में कहत पड़ गया था, लोग भूखे थे और लोगों के पास माल और दौलत की कमी बहुत ज़्यादा आ गई। तो हज़रत हाशिम ने साल भर रोटी
हड्डियों के टुकड़े कर कर करके उनको शोरबे में डुबो कर लोगों को पेट भर कर खिलाते थे, इसलिए आपका लक़ब हाशिम हुआ। हाशिम इस जिम्मेदारी को इस तरह से संभालते हैं कि खाने काबा की तौलियत वगैरह अब्दुद्दार के पास थी। सिकाया रिफादा, जिसको मैं अभी नाम दे करके जो मिनिस्ट्रियाँ बताया कि ये अलग अलग कबीलों के ज़िम्मे थी, तो अब्दुद्दार जो एक इनके परदादा के ही ख़ानदान में लोग थे, उन्होंने बदउनवानियाँ शुरू की थी, टैक्स लगाया, हाजियों से पैसा लिया। ये तमाम चीज़ें होने की वजह से हज़रत हाशिम ने वो जिम्मेदारियाँ भी अपने हाथ में ले ली। अब कुरैश ख़ानदान ने हज़रत हाशिम के पास जो जिम्मेदारियाँ थी वो ये थी कि आप रिफादा यानी हाजियों को माली मदद देने के भी आप ही जिम्मेदार थे, सिकाया मिना में हाजियों को पानी पिलाने के जिम्मेदार भी आप ही थे, और सुदाना खाने काबा की चाबी और कलीद बरदार जो कहते हैं वो भी जिम्मेदारियां आपने ले ली थी। इतना ही नहीं, नदवा एक वहाँ की ऐसी बैठक का नाम है जो अदालत भी है, पार्लियामेंट भी है, मशवरे की जगह है, जहाँ सबके फैसले किए जाते थे, वो भी हज़रत हाशिम के ज़िम्मे में थी। हज़रत हाशिम, इनका भी मामला ऐसा हुआ कि इन्होंने शादी फरमाई और इनके यहाँ एक ही बेटा पैदा हुआ जिनका नाम शैबा था। हज़रत हाशिम के घर एक बेटा पैदा हुआ शैबा, और उसके बाद हज़रत हाशिम का इंतकाल हो गया। शैबा बचपन में ही अपने बाप से महरूम हुए, और इनके चचा थे मुत्तलिब, जिनका नाम था, हाशिम के भाई, सगे भाई थे। मुत्तलिब ने ये शैबा को गोद ले लिया और परवरिश की, और इतनी अच्छी परवरिश की कि लोग जो है शैबा को उनके असली नाम की बजाय मुत्तलिब का गुलाम या मुत्तलिब का बेटा कहते हुए अब्दुल मुत्तलिब ही कहने लग गए। ये अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे दादा हैं। अब्दुल मुत्तलिब, इनका असल नाम शैबा है। अब ये खाना काबा की तौलियत की जिम्मेदारी सबसे लंबे अरसे तक संभालने वाले यही हैं। काफ़ी लंबा टाइम इनको मिला। अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में ही वो असहाबे फील का वाक़या पेश आया जो अबरहा बादशाह खाने काबा को ढाने आया था, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में पेश आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी तकरीबन काफ़ी औलाद हुई, बेटे हुए, 12 के करीब उनकी भी औलाद हुई। आपने एक मन्नत मानी थी कि अगर मैं अपने सारे बच्चों को जवानी के हालत में देख लूँ तो इनमें से एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगा। जब सारे बच्चे आपके जवान हो गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास गए, और उसके बाद आपने खुरा अंदाज़ी की अपने बेटों के नाम निकाल करके कि किस बेटे का नाम निकलेगा जिसको कुर्बान किया जाए। तो आपने जब कुरान अंदाज़ी की तो आपके छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्लाह का नाम निकला। कुर्बानी के लिए हज़रत अब्दुल्लाह का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वो सबसे ज़्यादा महबूब थे, नूरे नज़र थे। आपने सारे लोगों से मुखातिब होकर के कहा कि इस मसले को कैसे हल करें, तो सारे लोगों ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामला अल्लाह के हवाले इसको छोड़ दो। फिर आपने ख्वाब में देखा कि इसका मामला ऐसा है कि अपने उस नूर नज़र महबूब बेटे की कुर्बानी की बजाय उनकी जगह 100 ऊँट कुर्बान कर दिए जाए। तो 100 ऊँट कुर्बान होंगे, लेकिन आपके बेटे की कुर्बानी भी मान ली जाएगी कि आपने बेटे को भी कुर्बान किया। आपने हज़रत अब्दुल्लाह की जगह पर 100 ऊँट कुर्बान किए। इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, अना इब्नुल ज़बीहैन, ऐ लोगों मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी इस्माइल अलैहिस्सलाम है, दूसरे ज़बी मेरे बाप अब्दुल्लाह है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये हज़रत शैबा अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा की तौलियत को संभालते रहे, ये तारीख़ यहाँ तक आई। आले इस्माइल हैं, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। तारीख़ को मैंने शुरू किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फिर अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा की तौलियत संभालते रहे।